of ownership plan. Before going towards our today's topic, let me give you a very brief introduction of Mr. Kumar Aniket. Mr. Kumar Aniket has completed his CS from Institute of Company Secretariat of India and has done his LLB from University of Delhi. And he has experience of more than 20 years. Mr. Kumar Aniket is a finance and legal professional with extensive experience of startup world as well as established multinational businesses across geographies including India, Sri Lanka, Singapore, UAE, Saudi, Europe, and USA. He has worked with companies like Dragger, Barista, Oxygen, FIS, Jabong, Foodpanda, FuturePath AI. He has also involved with several Silicon Valley startups. Now, I would like to request Mr. Kumar Aniket to start with our today's topic. Hello? Yes, please go ahead. We welcome on behalf of the Vidya Vijay Foundation. Please go ahead. So, hello everyone, Aniket here. Hello. Very good morning to all of you. So, good morning. It's nice to meet all of you. I believe some of you already know me. Yes. So, I am Kumar Aniket. I became a company secretary in 2002. And I have worked both in industry and practice side. And not exactly a practicing CS, you can say. I'm more of a consultant kind of guy. So, so to begin with, I will like to talk about one. So talk about ESOPs and as a tool of long-term employee retention. So one thing, how many of you guys know about ESOP and understand what ESOP is? Any of you have ever been in a company where you have received ESOP or part of a team which formulated ESOP? Hello? Yes. So what I am asking that any person who has experience of ESOP, who understand ESOP and the purpose behind it. So anybody is here who has been part of, who has received ESOP or has been part of framing ESOP policy as a consultant or an employee? Probably not. Yes, I am working with a current organization. Here we are providing ESOPs to key employees of the company. So ESOP is basically the main idea for forming ESOP policy is to retain talent. That is, employees basically want to, through ESOP policy, we aim to feel employed at their part of the company and to retain them for longer future. Correct. So, can you guys see my screen? I am, this presentation which is there. Yes, Yeah. sir. We can see. Yes, sir. So, start with, let me, I will like it more to be interactive sessions where you can ask questions freely and I talk freely rather than, giving a bookish sort of presentation. Okay. So, we are talking about first that the purpose of ESOP, rightly said, is employee retention. So employee retention tool. So for you need to understand that what is the, why companies want to retain employees, what are the different tools available and why ESOP is the preferred tool. And especially for startups, you join a startup, you get ESOP. And in fact, if you are a company, a startup, and you go to IITs or IIMs to hire somebody, so you will not be able to find anybody unless you offer ESOPs. People will join established company, they will join startups only for ESOPs. Some of you might have read news articles where
hundreds of crores have been distributed among employees because of the ESOP. They were participants to ESOP pool of the company. So one, yes, ESOP is the employee retention tool. So I will like to start with why ESOP. Okay, why we want to do employee retention? Why companies want to do employee retention? We live in India where there are no shortage of people. इतनी आबादी है, एक जाएगा दूसरा आएगा, बल्कि आप एक वैकेंसी निकालोगे 50 लोग अप्लाई करते हैं, करेक्ट? सो स्टिल कंपनी जो है, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े हुए हैं, वो लोगों को रिटेन करना चाहते हैं कि जो उनके यहाँ आ जाए वो लंबे समय तक रुके। क्यों है ऐसा? आप में से कोई बताएगा? कंपनी क्यों एम्प्लॉय रिटेन करना चाहती है जबकि आबादी इतनी है, जितने चाहिए उतने बंदे मिल जाएंगे? Because whatever the persons, suppose if the person is continuously working with us from 2, 3, 4, 5 years, he knows ins and outs and all those details. Certainly once he will continue with us, he will be more valuable and he will be asset for us. Correct. Certainly, therefore we want to retain that employee. So employee retention companies क्यों करना चाहती हैं? पहला चीज है कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट आता है, तो वो कंपनी क्या अच्छा खासा टाइम तो ये समझने में लगता है कि कंपनी क्या धंधा करती है। ठीक है, सारी कंपनीज का बिजनेस और काम करने का तरीका, कल्चर अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों से डील करना होता है, तो वो जो आदमी नया आता है उसको समझने में टाइम लगता है। इट टेक्स लॉन्ग टू ट्रेन अ रिप्लेसमेंट, बिकॉज नॉलेज ट्रांसफर 100% कभी नहीं है। कितनी बार आप कंपनी में देखोगे कि यार ये वाली चीज डॉक्यूमेंट नहीं मिल रही, तो ये काम पिछला आदमी करता था, आई हैव नो आइडिया, मेरा केटी नहीं हुआ, नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ। सो नॉलेज ट्रांसफर कभी 100% नहीं है। प्रॉपर हैंड ओवर करने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाती हैं, और फिर जो बंदा छोड़ के चला गया उसको बार बार कांटेक्ट करके डिटेल ले पाना मुश्किल होता है। डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो जाते हैं, स्टाम्प पेपर मिसिंग है, स्टाम्प पेपर कहाँ रख के भूल गया, वो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट चाहिए, लास्ट मिनट पे मिल नहीं रहा। ठीक है, और कोई गारंटी नहीं है कि आपके एम्प्लॉय को जा रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट बेटर होगा, और बेटर होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट होगा। ठीक है, ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हमेशा एसेट है। ठीक है, कंपनी का तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, पीपल है, और एम्प्लॉइज मैटर, बिकॉज एम्प्लॉइज मैटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप्स में एम्प्लॉइज को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्टअप जो है, आप लोग स्टार्टअप समझते हो? स्टार्टअप का बेसिक कंसेप्ट क्या है? हेलो? Yes. मैं स्टार्टअप जो है बेसिकली क्या है, स्टार्टअप क्या है कि जो बेसिक कंसेप्ट है कि एक पर्टिकुलर वे से कोई बिजनेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं उबर का एग्जांपल लेता हूँ। उबर सारे लोग यूज करते हैं। फिर ओयो का बताऊंगा। उबर जैसे क्या है कि टैक्सी जो है, आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हो, बहुत सारे टैक्सी वाले पहले खड़े हो जाते थे, ये पैसा लेंगे, वो पैसा लेंगे, जाना मुश्किल है, टैक्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब क्या है, उबर, रैपिडो, 50 ऐप है। इन्होंने, जो उबर वालों ने रियलाइज किया कि भाई टैक्सी खोलने वाले भी लोग हैं और बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जिनको की सवारी नहीं मिल रही, तो उन्होंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी बनाया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। सो बहुत सारे जो लोग थे, उनको एग्जिस्टिंग लोग जो एक्स्ट्रा पैसा बना रहे थे उनका पैसा छीन के, बिकॉज एक बात समझिए, कुछ भी नया बनता है तो पुराना कुछ टूटता है उसके नींव पे। हिंदी में एक कहावत है कि निर्माण जो होता है वो हमेशा विध्वंस की नींव पे होता है। सो कुछ टूटता है तो कुछ नया बनता है। तो स्टार्टअप्स का क्या है कि वो नया कुछ लेकर आ रहे हैं। जैसे ओयो का स्टाइल था, जब ओयो शुरू में आया था तो वो बी ग्रेड, सी ग्रेड होटल्स को लेके वहां पे एक उसने मिनिमम क्वालिटी की गारंटी की। बाद में ओयो बड़ा हो गया, वो मिनिमम क्वालिटी नहीं दे पाए, ओयो खत्म हो रहा है। सो बेसिक चीज है कि स्टार्टअप्स के साथ उनका अलग कल्चर है, वो शुरू से बंदे लेकर आए, उन्हें अपने हिसाब में ट्रेन किया है। तो पुराना बंदा जाता है, स्टार्टअप्स को रिप्लेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय के रिटेंशन के और कौन से टूल हैं। कौन से? ईसॉप है। सो ईसॉप हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है एसएआर। एसएआर क्या होता है? कोई बताएगा एसएआर का फुल फॉर्म क्या होता है? Stock appreciation rights. Actually, in SAR, we don't give shares to company, but we promise them to
pay the increase in the valuation of the shares of the company. हाँ, तो SAR का क्या है मैं बता रहा हूं। SAR कहते हैं, ये भोजपुरी वाला SAR नहीं है, ठीक है, इंग्लिश वाला है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। SAR का मतलब होता है, जैसे आप मैथ में हम लोग पढ़ते थे ना छोटे क्लास में, कि मान लिया कि ये वैल्यू x है और उसके बाद हम कंप्यूटेशन निकालते थे। तो SAR में वैसे ही मान लेते हैं कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ये है। अगर कंपनी में कोई शुरू ज्वाइन कर रहा है तो 0 भी मान लेते हैं, 10 रुपए मान लेते हैं। कोई 1 साल बाद आया है तो 1 साल बाद की एक वैल्यू टेबल पे रख के कि कंपनी की बेस प्राइस ये है और आपने आज ज्वाइन किया है। आप अगर कंपनी की वैल्यू में कुछ भी ग्रोथ होता है, ऊपर नीचे होता है, तो सर्टेन कंडीशंस में स्टॉक एप्रिसिएशन जो है, मान लीजिए कंपनी की वैल्यू 100 रुपए थी जब आपने ज्वाइन किया और 150 रुपए हो जाती है, तो आपके पास राइट है कि आप 100 रुपए में शेयर ले लो, ठीक है। सो 50 रुपए आप ले सकते हो, ईसॉप की तरह ही सेम कहानी है। अच्छा, कोई बताएगा SAR पे टैक्स किस रेट से लगता है? परक्विजिट का टैक्स लगता है या कैपिटल गेन्स लगेगा? क्योंकि शेयर तो है नहीं यहाँ पे। हेलो, जी, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स पे परक्विजिट का टैक्स लगेगा या कैपिटल गेन्स का लगेगा? ईशॉप पे तो परक्विजिट का लगता है, SAR का क्लैरिटी नहीं है मुझे अभी। SAR पे टैक्स जो लगता है वो कैपिटल गेन्स लगता है। इनकम टैक्स ने परक्विजिट का लगाया था। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि SAR को कैपिटल सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट करेंगे और SAR पे कैपिटल गेन्स ट्रस्ट लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है, जो करेक्ट स्टैंड है। अब हम आते हैं, एक डिफर्ड कंपनसेशन होता है। ये क्या करती हैं कंपनियां कि कहती हैं इंप्लाई रोकने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब जॉब करता था FIS में, तो हमारी सैलरी का एक मतलब मेरी सैलरी का, मैं सीनियर लेवल था, तो मेरी सैलरी का आप ये समझ लो कि अराउंड 50% पैसा जो है एनुअल बोनस था। वो साल के अंत में कैलकुलेट होता था, कंपनी की परफॉर्मेंस और ये क्राइटेरिया था, मेरी परफॉर्मेंस दोनों को मिला के कंप्यूट होता था और उसके बेसिस पे 80%, 90%, 100% ऐसे करके रिलीज होता था। तो ये जो एनुअल बोनस है या डिफर्ड पेमेंट है, ये कंपनी साल पूरा होने के बाद, बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद कंप्यूट होता था और मिलते मिलते 3-4 महीने लग जाते थे। तो मार्च में आपकी बैलेंस शीट बनी, पैसा आते आते दिसंबर लग जाता था। अब दिसंबर तक मैं काम कर चुका हूं, मेरा अगले साल का 6 महीने की कमाई हो चुकी है, तो मुझे छोड़ना है तो मुझे 10 बार सोचना है कि यार ये एनुअल बोनस जो है पूरा का पूरा मारा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वार्टरली बोनस होता है और इस बोनस के साथ वो क्या करते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज जो हैं, वो जो कंपनी का HR है वो डालता है, डिस्क्रिशनरी है, एक्स ग्रेशिया है, बिकॉज ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे है। ये कंपनी तभी देगी जब आप कंपनी में कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड विद द कंपनी, ठीक है। सो डिफर्ड पेमेंट भी एक सिस्टम है। चौथा, वॉलमार्ट स्टाइल ट्रस्ट। ये शायद ही किसी ने सुना हो। आई डोंट एक्सपेक्ट किसी ने सुना होगा। एनीबॉडी हैज हर्ड अबाउट इट? सो वॉलमार्ट तो जानते हो आप लोग, यू आर अवेयर अबाउट वॉलमार्ट? यस, सो वॉलमार्ट जब शुरू शुरू में आई थी, तो वॉलमार्ट, अब रिटेल में क्या होता है कि लो लेवल पे सैलरीज बहुत लो होती हैं, ठीक है। जो सेल्समैन लेवल का बंदा होता है उसको 10, 12, 15 ऐसे ही सैलरी मिलती है। तो वैसे बंदों को रिटेन करने में समस्या थी। वॉलमार्ट ने एक पॉलिसी निकाली। उन्होंने क्या किया कि स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी का और कंपनी की रेवेन्यू, मतलब उस स्टोर की रेवेन्यू का और कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का, दोनों बेसिस पे वो कंप्यूट करके वो क्या करते थे, ट्रस्ट में जो है मंथली एक सम कंट्रीब्यूट करते थे। और उनका ये है कि 10 साल तक जो एम्प्लॉय रह जाएगा, ठीक है, जो 10 साल पुराना हो गया, उनके बीच में वो फंड जो है डिवाइड होगा। सो अगर कंपनी में इस बीच में काफी एम्प्लॉय आए गए तो उनका पोर्शन जो है, जो रुक गए उनको मिलेगा। सो 10 साल तक जो रुक जाता था उसको, उस फंड में अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता था। सो जो 2-4 साल रह जाते थे और जो पुराने थे वो बताते थे कि यार ये है। सो वॉलमार्ट के पास इवन सैलरीज कम थी, पीपुल
लोगों ने रुकना शुरू किया, उन्होंने उसके बाद ईसॉप वॉसॉप भी दिए। बट वॉलमार्ट के लिए ईसॉप से बड़ा फैक्टर ये ट्रस्ट था कि उन्होंने ओवर एंड अबव जो स्टैट्यूटरी पेमेंट थी उसके अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट बना के रखा था। ठीक है, लेट मी Yes, sir. सो बीच में किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी टॉपिक पे, फील फ्री टू आस्क। आई प्रेफर एन इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सेशन। ठीक है, अब Yes, वंस sir. अगेन आते हैं इंसेंटिवाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू स्टे, स्टॉक ऑप्शन। सो स्टॉक ऑप्शन क्या है? स्टॉक ऑप्शन क्या है कि कंपनी क्या करती है कि आपको एक ऑप्शन देती है कि भाई यू हैव अ राइट टू परचेज। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ, आप लॉयर हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, जब इस सब प्लान बन रहा होता है तो आपको किसकी तरफ से सोचना है, एम्प्लॉय की तरफ से या कंपनी की तरफ से? आप किसकी Employee तरफ? की तरफ से सोचना चाहिए, देखो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है या जनरल काउंसिल है, उसका काम क्या है? उसका काम है, ही इज एडवाइजर टू डायरेक्टर, चेयरमैन। तो उसका काम है चेयरमैन को एडवाइस करना कि भैया क्या, किस चीज में क्या हो सकता है और कैसे अपने डायरेक्टर को प्रोटेक्ट करेगा। सो वी आर मोर लाइक सामुराइज, और जॉब इज टू प्रोटेक्ट द डायरेक्टर। सो हमारा काम कंपनी की ओर से सोचना है, हमें भी स्टॉक मिल रहा है, अपने स्टॉक की भी चिंता है, बट जो जीसी है या कंपनी सेक्रेटरी है उसका काम कंपनी की ओर से सोचना है। उसका है चेयरमैन को एडवाइस देना, वाई ईसॉप में कैसे क्या प्लान करें, किस किस केस में क्या हो सकता है, अगर किसी एम्प्लाई को ईसॉप दिया गया, उसके शेयर्स वेस्ट हो गए, वो छोड़ के चला गया, तो उस केस में कैसे क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उसके लिए ईसॉप प्लान में पहले प्रोविजन रखना। बिकॉज जो लॉयर या कंपनी सेक्रेटरी का रोल है, इट्स वेरी डिफरेंट। वी आर नॉट द गुड गाइज, वी आर द बैड गाइज। आवर जॉब इज टू टेक केयर एंड यूज प्लान फॉर एनी इवेंचुअलिटी which may or may not happen. So इंश्योरेंस की तरह हमारा प्लान है, क्या खराब हो सकता है उसके लिए अभी प्रोविजन करना। करेक्ट? yes, हाँ, हम एम्प्लाई की तरफ नहीं, हम कंपनी की तरफ है। सो स्टॉक ऑप्शन इज ऑप्शन राइट टू परचेज। सो स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि जब आपको स्टॉक ऑप्शन का ईसॉप का लेटर मिलता है, उसमें लिखा होता है कि आप वैल्यूड एम्प्लॉय हो कंपनी के, यू आर वैल्यूड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यू हैव राइट टू गेट सो मेनी शेयर्स एट दिस वैल्यू। वैल्यू का एक जस्टिफिकेशन भी होता है कि भाई कंपनी की वैल्यू आज ये है, सो आपने इस डेट पे ज्वाइन किया तो ये वैल्यू है, अब आगे जो एप्रिसिएशन होगा उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा, सो यू आर गेटिंग दिस ईसॉप एंड दिस ईसॉप विल वेस्ट। तो वेस्टिंग पीरियड जो होता है नॉर्मली क्या होता है, 1 साल के बाद स्टार्ट होता है, 4 साल तक होता है। एक इम्प्लाई स्टॉक परचेज स्कीम होती है जिसमें आउटराइट ग्रांट भी दे दिया जाता है। ठीक है, एक स्टॉक परचेज प्लान आ गया कि आप कंपनी के शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हो, या कुछ कंपनियां कहती हैं, जैसे मैं एफआईएस में था, एफआईएस कहती थी कि अगर आप कंपनी का एक शेयर खरीदोगे तो ईसॉप, कंपनी का जो ईसॉप ट्रस्ट है वो एक एक्स्ट्रा शेयर खरीद के मेरे अकाउंट में डाल देगा। रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक क्या होता है, कितने लोगों ने सुना है? एनीबडी नो अबाउट रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक और आरएसयू, रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट? So restricted stock unit is plainly it is shares only, equity or preference. The only thing is that there are restrictions attached to those shares. Restrictions mostly is about transfer of shares, that you have been given shares but you cannot transfer it. Performance shares. So performance shares is that company says rather than giving you incentive, you have done good work, we will give you shares of the company and zero cost पे दे। Quarterly, monthly bonus, I believe we have talked about. अब ESOP objectives we are talking about. What is the objective of giving ESOP? Why ESOP? Hello? So tell me, guys, why ESOP? Why do we give ESOPs to people? basic purpose is to retain the employee and also provide some benefits to the employee. Suppose if it is the price of the shares is today
10 rupees, and probably once he will stay with us from last 4-5 years, probably it may go for the 100 rupees. So almost 10 times he is Yes. enjoying the So, benefit. so I will give you. Okay. So one, the purpose is that you want to give employee a feel that you are one of the owners of the company. So you have your own skin in the game and your future is linked to the future of the company. Company gains, you gain, you lose, company loses, you lose. Employee retention, of course, also a motivation tool that you motivate employee that you are not only an employee, you are also an owner. You need to be think that you are part of the team. So Infosys में ध्यान होगा, Infosys ने इवन जो कैंटीन में लड़का चाय लेके आता था उसको भी ESOPs दिए थे. ठीक है. ESOPs की जो आज की डेट में मैं जैसे कह रहा था, अगर IIT IIM ढंग के किसी कॉलेज में जाओगे तो बिना ESOP के लड़के स्टार्टअप नहीं ज्वाइन करते. इट्स अ पार्ट ऑफ हायरिंग स्ट्रेटजी ऑफ ESOP. ठीक है. एंड आप क्या कर रहे हो अगर स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिकली क्रिटिकल है, बिकॉज अगर कोई आदमी एस्टेब्लिश्ड कंपनी लाइक टाटा छोड़ के, हिंदुस्तान लीवर छोड़ के अगर किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहा है तो वो रिस्क ले रहा है, उस रिस्क के लिए एडिशनल कंपनसेशन बनता है. ठीक है. एंड एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए क्या करते हैं कि जब आपको हम ग्रांट देते हैं तो ग्रांट में वेस्टिंग में और एक्सरसाइज में गैप होता है. करेक्ट. और एक एम्प्लॉय को फीलिंग देते हैं कि भाई तुम केवल अपने डिपार्टमेंट या अपने काम के बारे में मत सोचो, तुम पूरी कंपनी के बारे में सोचो, क्योंकि पूरी कंपनी तुम्हारी है. ओके. अब हम Yes, sir. बात कर रहे हैं ESOP. इसमें ESPS हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, SAR और स्वेट इक्विटी. स्वेट इक्विटी किसी ने अलॉट किया है क्या कभी आप में से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी? स्वेट इक्विटी, द मीनिंग इज, स्वेट का मतलब होता है पसीना, पसीने का पैसा. सो बेसिकली ये IPR कंट्रीब्यूशंस, कंपनी के कुछ कंपनीज के फाउंडर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ESOP शेयर्स लेते हैं. ठीक है. अच्छा ये बताओ, इज इट पॉसिबल अंडर FEMA to get ESOP equity, sweat equity in a company founded outside India? Suppose that you are part of a startup, the holding company of startup is outside, and they are giving you sweat equity of that startup. So is it possible for a foreign company to grant sweat equity or a ESOP? I think might be possible, sir. I think might be possible, sir. Yes, sir, it is possible under Companies Act also, I believe. RBI also allows, FEMA allows, but before FEMA there was FERA, and under FERA the acquisition of foreign equity was a criminal offense. So the things like SAR, stock appreciation rights, came. Why? Because there were companies like in countries like India where in a MNC, suppose that MNC, I'm talking about Microsoft, I'm talking about General Motors, I'm talking about Ford. So they are a global behemoths. So when they have employees, they consider all of them, wherever they are located, to be their employees. So when they give ESOPs, they give to everyone. And now the problem was in certain companies that people were unable to receive those. So way prior to 1999. So that is why SARs were designed, stock appreciation rights. That we can't give you shares, so we are giving you phantom stocks. So we will assume that we have given you so many shares, and whatever benefit accrues on those shares, you are entitled to that. So this is the origin of SARs. Right now, SARs are used to incentivize consultants, because it's not only employees who are stockholders, it's also consultants who are stockholders. For example, I have received a stock in certain companies where I am working as a consultant. One major company, so you will get the name. So the company
was founded only 6 months back. Around 60-70 odd lakhs have been burned, and the company is currently valued at $10 million. And since they were unable to pay my fees at that time, so they gave me 1% equity. So they were unable to give me ESOPs, so they give me SAR. That look, next, not on first round, but second round of funding, you are entitled to encash your 1%. Sir, I have a query. So coming back, yes, please. Sir, I'm Kamlesh Mishra. एक छोटी सी query है sir. Whether बताओ sweat भाई। equity shares and advisory shares are both are the same thing or different? भाई एडवाइजरी शेयर्स का तो ये हो गया कि आपको शेयर मिलने हैं कंपनी में। अब एज ए कंप्लायंस प्रोफेशनल यू विल सी कि आपको शेयर कैसे करके लेंगे। स्ट्रेट इक्विटी में सर्टेन रिक्वायरमेंट है, वो आपको मीट करनी होती है, जो कंपनी लॉ की। सो बहुत बार क्या करते हैं, आधा 1% के लिए उतनी कंप्लायंस करने की जगह कंपनी कहती है यार 1% जो फाउंडर के पास पड़ा है शेयर उसी में दे देते हैं। बहुत बार कंपनी कहती है कि एक काम करते हैं 1% आपको सीधे अलॉट कर देते हैं फेस वैल्यू पे, ठीक है। अब फेस वैल्यू पे अलॉट करने में प्रॉब्लम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, बिकॉज डिफरेंशियल वैल्यू पे टैक्स लग जाता है। तो उसके लिए वो स्टार्टअप जो है 80 ISC अप्लाई करते हैं। सो 80 ISC पता है आपको? Yes. हाँ, तो 80 ISC क्योंकि वो टैक्स जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लगता है ना शेयर के डिफरेंशियल वैल्यू पे। Yes. इंडिया, यू विल सरप्राइज नो, इंडिया दुनिया में अकेली कंट्री है जो शेयर पे टैक्स लेती है। दुनिया में कोई कंपनी शेयर को इनकम नहीं मानती और उस पर टैक्स नहीं लेती, बल्कि इनफैक्ट शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाता है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो, गूगल पे नोट करके देखना QSBS और 83B एग्जाम्पशन सर्च करना। तो वो डिजाइंड है कि अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा इसके लिए। QSBS है और 83B एग्जाम्पशन। यूएस के IRS को इंटरनल रेवेन्यू कोड का मेरे ख्याल से सेक्शन 1202 है 1202। सो कमिंग बैक टू दिस, कमलेश आपकी क्वेरी क्लियर? Yes, sir. Thank you. So coming back to this, we are talking about this thing. Sir, can you please zoom the slides? Come again? Can you please zoom the slides? Double tap the screen. ये zoom. Yes, yes, yes. ठीक है। Okay. So concept. So basic concept ESOP का क्या है कि आप ऑप्शन दे रहे हो राइट टू सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, करेक्ट। सो देयर इज अ वैल्यू जो है ESOP प्लान में आपके ग्रांट लेटर में लिखी होती है, बिकॉज अलग अलग में क्या होता है कितनी बार अलग अलग वैल्यू होती है। सो इट इज मेंशन्ड इन द ग्रांट लेटर। ESPS में क्या है, आउटराइट सेल्स है शेयर्स का, आउटराइट अलॉटमेंट शेयर हो जाता है कि भाई आपको हम आज अभी शेयर दे रहे हैं, फ्यूचर डेट पे वेस्टिंग एक्सरसाइज का कोई चक्कर नहीं। SAR आपको कैश इंसेंटिव मिलेगा अगेंस्ट शेयर्स, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। स्वेट इक्विटी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट और जीरो वैल्यू अगेंस्ट IPR और वैल्यू कंट्रीब्यूटेड टू द कंपनी, ठीक है। अब क्या है, किसको मिलेगा? ESOP केवल इंप्लाई और डायरेक्टर को मिल सकता है। ESPS केवल इंप्लाई और डायरेक्टर को मिल सकता है, नहीं कंसल्टेंट्स आर आउट। SAR कैन बी गिवन टू एनीबडी, एनीबडी मींस एनीबडी, चाहे वो कंपनी से जुड़ा हो या ना हो। स्वेट इक्विटी implies डायरेक्टर इंक्लूडिंग प्रोमोटर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंक्लूडिंग क्यों यूज किया है प्रोमोटर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ये आगे में हु आर नॉट एलिजिबल में कंपनी में किसको, कौन ESOPs के लिए एलिजिबल नहीं है? प्रमोटर ग्रुप, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सब्सटैंशियल शेयर होल्डर जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो ESOP नहीं ले सकता। सेम कहानी है ESPS में। स्वेट इक्विटी में इसी वजह से ऊपर लिखा है कि इंप्लाइड डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग प्रमोटर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि प्रमोटर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ESOP नहीं दिया जा सकता या ESPS नहीं दिया जा सकता। तो उनको आप एडवाइजरी शेयर देते हो, जो देना होता है वो यहाँ पे देते हो, स्वेट इक्विटी में SAR देते हो, या फिर क्या करते हो कि उनसे कहते हो कि भाई आप एक नॉमिनल वैल्यू पे सब्सक्राइब कर लो, अलग से एक स्कीम बना देते हो, बट उसमें इशू आता है तो फाउंडर बहुत बार अपने शेयर इशू कर देते हैं, अपने में से ट्रांसफर कर देते हैं। अब लॉक इन पे आते हैं। लॉक इन का क्या है, लॉक इन क्या होता है बताओ?
कंपनीज एक्ट में तो लिखा है शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, करेक्ट? सो लॉक इन के प्रोविजंस कैसे वैलिड है, किस कंपनी में वैलिड है? Sir, as per SHA, it can be validated. हाँ, तो प्राइवेट कंपनी के डिफिनेशन में है कि प्राइवेट कंपनी कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सो कैसे कर सकती है? थ्रू एसएचए और आर्टिकल्स। AOA में incorporate करके। अच्छा, कभी आपने ऐसा कोई केस डील किया है जहां पे एसएचए में तो प्रोविजन है कि शेयर्स पे शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है और आर्टिकल्स में नहीं है, तब क्या होता है? सर उस केस में तो AOA will prevail एओए and विल प्रिवेल। हाँ, अगर matter कंपनी will पार्टी go नहीं है, to कंपनी पार्टी नहीं है एसएचए के, तो कंपनी चाहे तो शेयर ट्रांसफर रिकॉर्ड कर लेगी, बिकॉज उसका लीगल ऑब्लिगेशन है। true. एसएचए मगर अगर कंपनी पार्टी नहीं है कि शेयर होल्डर्स पार्टी हैं, तो इट इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स। सो कंपनी पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से काम करेगी। सर अगर ईएसपीएस में कंपनी कोई पार्टी है, सर अगर कंपनी पार्टी है फिर भी तो AOA has to be prevailing ना। भाई आपने एओए प्रिवेल, बहुत सही बात है। कब? जब एओए और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में कंफ्लिक्ट हो। बट इन दिस केस देयर इज नो, एओए इज साइलेंट एंड शेयर होल्डर हैज रेस्ट्रिक्शन एग्रीमेंट। सो आपको दोनों को साथ में लेके आपको उनको हार्मोनिक इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा, True, true. है? सो Yes, sir. इन दैट केस एसएचए इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ठीक है, Yes, yes. क्लियर? Clear. एसएआर वंस अगेन देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट, बट आप लॉक इन डिजाइन कर सकते हो। स्वेट इक्विटी में कंपलसरी लॉक इन है 3 साल का। कैप कितना ईसॉप लिमिट करना है, कोई अपर लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 100% ईसॉप दे सकते हो। इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है? 5 से 10%। बट अभी मैं एक स्टार्टअप में इन्वॉल्व हूं जिसमें 16% ईसॉप ऑलरेडी प्रॉमिस्ड है, 16%, और उसके अलावा 6% एसएआर प्रॉमिस्ड है। ईएसपीएस, सो देयर नो थंब रूल, डिपेंड्स ऑन नेगोशिएशन। ईएसपीएस कोई कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, एसएआर में कैप नहीं है, मगर स्वेट इक्विटी में कैप है 25% मैक्सिमम। स्वेट इक्विटी कैन बी इशूड, और स्टार्टअप के केस में 50%। 50% ऑफ व्हाट? ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। ईसॉप ट्रस्ट से कितने लोग वाकिफ हैं? I am aware. हाँ, सो ईसॉप ट्रस्ट क्यों बनाते हैं? हम सीधे ईसॉप दे सकते हैं एम्प्लॉय को, ईसॉप ट्रस्ट क्यों बनाते हैं? सर मेजरली आई थिंक टैक्स पर्पस के लिए ज्यादा बेटर होता है। और कोई? आपका सवाल पार्शियली, आपका जो कहना है ना वो पार्शियली सही है, कंप्लीट नहीं। और कोई? So let me give you some hypothetical scenarios. Suppose that you are employee in a company and certain ESOPs have been given to you. You have, if the ESOPs have, part of the ESOPs have vested, you have exercised your rights. And now you had some issues and you have left that company and joined another company. Now an investor has come, and that investor wants that SHU to be executed and wants all shareholders to come and execute. So अब आप इसमें बताओ प्रमोटर को क्या क्या सरदर्द है? You are a promoter, what are your problems? मैंने पहले ही कहा था कि भाई being a company secretary or lawyer, you are on the side of company, not on the side of employees. So क्या प्रॉब्लम है बताओ, गेस करो। गाइस यू आर लॉयर्स, गेस करो आप अपने हिसाब से, बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्रमोटर को। सो पहली प्रॉब्लम यह है कि जो एम्प्लॉय छोड़ के गया है जरूरी नहीं है उससे रिलेशन अच्छे हों। अब वो अड़ जाएगा, भाड़ में गया पैसा, मैं नहीं साइन करता, करेक्ट? एम्प्लॉय जो छोड़ के गया है वो अपना नया एड्रेस शेयर नहीं कर गया, नंबर बदल लिया है। यू कैन नॉट कनेक्ट दैट विद दैट एम्प्लॉय। ठीक है। नंबर 3,
SHA में 50 चीजें लिखी हुई है, वाई शुड आई शो टू एन एम्प्लॉय हु हैज लेफ्ट, और वाई शुड आई शो इट टू एवरी एम्प्लॉय? मैं क्यों बताऊं कि SHA में मेरे क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं या क्या क्या मुझे करना है? करेक्ट, SHA कॉन्फिडेंशियल है, मैं 2-3 लोगों को ही साइन कराना चाहता हूँ, सारे एम्प्लॉइज को दिखाना नहीं चाहता। करेक्ट? Yes, correct. तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज एन इशू। ठीक है, जिसके पास जो शेयर्स वेस्ट हो गए उसमें इशू है। सेकेंडली, कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया, कंपनी वांट्स टू बाय बैक, सो कंपनी ईसॉप के शेयर्स तो बाय बैक नहीं कर सकती, मगर ट्रस्ट तो कर सकता है। करेक्ट, कंपनी ट्रस्ट को बायबैक के लिए लोन दे सकती है, अदरवाइज सीधे तो बायबैक के रूल्स में अलाउड नहीं है। ओके, नंबर 3 कि जो ईसॉप ट्रस्ट को कंपनी गारंटर बन जाएगी, एंड बैंक्स कैन गिव डायरेक्ट लोन्स टू एम्प्लॉइज फॉर परचेज ऑफ ईसॉप शेयर्स। बैंक एम्प्लॉइज से वसूलेगा और ट्रस्ट या फिर ट्रस्ट पे बैक कर सकती है उनके बिहाफ पे, और ट्रस्ट को जो पैसा कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी वो टैक्स डिडक्टिबल है। करेक्ट? Yes, correct. हाँ, so company can grant loans to ESOP trust for purchase of ESOPs. Company ESOP trust pass all benefit to employee without relinquishing control. SHA confidentiality is of course there. Ensure availability of shareholder even if employee is not associated with company anymore. Banks can grant loan to ESOP trust against company guarantee. Payment to ESOP trust is tax deductible. So आप जितनी बड़ी लिस्टेड कंपनीज देखोगे सारे के ESOP स्कीम ट्रस्ट से एडमिनिस्टर होती है, और इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो थोड़ा समझदार हैं वो ट्रस्ट रूट से ही जाते हैं। इवन दो इट कॉस्ट मोर, इट इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट मेरा SHA कॉन्फिडेंशियल है, मेरे को ESOP ट्रस्ट के थ्रू मेरा कंट्रोल है। एम्प्लॉयर इज विलिंग टू गिव मनी बट कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अच्छा, कौन कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है अगर आप ESOP इशू कर रहे हो या ये कर रहे हो तो? So first of all, Companies Act 2013 right now. हाँ, फेमा, Income tax. स्टाम्प ड्यूटी आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया। ठीक है, अब आप ESOP जब प्लान करते हो तो आपको क्या देखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म क्या होगा? आप कोशिश ये करते हो ESOP प्लान में सारे राइट्स जो हैं वो ESOP के एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या कंपनसेशन कमिटी हो, उसके हाथ में हो। एलिजिबिलिटी आपको डिसाइड करनी है। कंपनीज लॉ आपके पास 4 कॉर्नर दिए गए हैं, कंपनीज एक्ट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है उस क्राइटेरिया के भीतर आप अपने चुन लेते हो किसको कैसे देना है। ग्रांट क्राइटेरिया आप डिसाइड करते हो। ग्रांट क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो टाइम बेस्ड होता है कि कम से कम इतने साल हमारे साथ रहोगे। सेकेंडली, परफॉर्मेंस माइलस्टोन बेस्ड होता है। तीसरा, कंपनी में कौन एम्प्लॉय कितना सीनियर है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन उस पर डिपेंडेंट है। प्लान का टाइप क्या है, डाइल्यूशन कैसे होगा, प्राइसिंग ESOP की 0 पे भी दे सकते हैं, 10 रुपए भी दे सकते हैं, वेस्टिंग शेड्यूल, एक्सरसाइज पीरियड, टैक्स इशूज, एग्जीक्यूटिव इशू। ESOP पे टैक्स कैसे लगता है? सो व्हाट इज टैक्सेशन से आप कितना फैमिलियर हो ESOP के? कैपिटल गेन टैक्स लगता होगा सर। ESOP पे 2 बार टैक्स लगता है। एक, जब ESOP आपको कंपनी ने ESOP दिया, ठीक है, एट that time there is no taxation. So grant of ESOP is only national. But जब आप ESOP एक्सरसाइज करते हो और शेयर लेते हो तो सपोज दैट मार्केट वैल्यू कंपनी के शेयर्स की 200 रुपए है और आपको 10 रुपए में मिला या 50 रुपए में मिला। करेक्ट? तो डिफरेंस को आपका परक्विजिट मान लिया जाता है और उस पर जो टैक्स लगता है वो सैलरी वाले हेड में लगता है, पर्क्स की तरह। ठीक है, और आपने आप 200 रुपए में ले लिया, अब कोई इन्वेस्टर आता है उसको 350 में खरीदता है, तो जो 150 का डिफरेंस है 150 का, उसको कैपिटल गेन्स ट्रीट होता है। तो 2 बार का टैक्सेशन है। अब ये बताओ, आपके पास आपने किसी इंप्लाई को शेयर दिया, उसने एक्सरसाइज कर लिया,
वो आ जाएगा, आपने उसका टीडीएस काट लिया, कंपनी में तो सारा पैसा कट जाता है, तो उसकी 2 महीने सैलरी नहीं आई, एम्प्लॉय आके बैठ गया कि क्या क्या तमाशा है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि भाई जब ईसॉप इशू होता है उस समय आप एक एफएक्यू का सेशन करते हो, क्वेश्चन आंसर का एफएक्यू सर्कुलेट करते हो, इसमें बताते हो कि भाई when you exercise ESOP it is taxable and HR is bound to deduct taxes. So एम्प्लॉय को हम एडवाइस करते हैं कि भाई ऐसा करो कि जब एग्जिट का टाइम हो, कोई इन्वेस्टर खड़ा हो, बायर खड़ा हो, तभी एक्सरसाइज करो। इवन दो आपको शॉर्ट टर्म की तरह लॉन्ग टर्म लगेगा, लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, बट स्टिल आपका जो कैश आउटफ्लो है वो इनफ्लो से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, देयर आर प्रैक्टिकल इश्यूज इन ESOPs, बिकॉज जिसका सैलरी कट गया ना वो आके बैठ जाएगा HR को, कहेगा मैं अभी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो आपका वेरी पर्पज है इन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय रिटेंशन, वही डिफीट हो जाता है। तो ESOP प्लान जब भी आप करते हो तो टाउन हॉल करते हो और एम्प्लॉय अवेयरनेस सेशंस करते हो, ताकि लोगों को पता हो कि हाँ भाई किस एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, करेक्ट। अब ये प्रेजेंटेशन पार्ट इज ओवर। अब आप लोग बताओ, आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं ESOP से रिलेटेड, टैक्सेशन, कोई भी ESOP से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी है CS लॉ नहीं, जो आप CA से क्वेश्चन पूछोगे वो भी पूछ सकते हो मेरे से, फाइनेंस हेड भी रहा हूं। सर ये ESOP को प्लान कैसे करते हैं सर, और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? देखो ESOP कैसे प्लान करते हैं, मान लो आप कंपनी के फाउंडर हो या आप फाउंडर के GC हो, लीगल एडवाइजर हो। फाउंडर ने कहा यार मैं सोच रहा हूँ ये कंपनी के सारे लोगों को ये ESOP दे दूं और एम्प्लॉय रिटेंशन की तरफ करो। तो आप फाउंडर से पहले तो समझते हो भैया आपका पर्पस क्या है, आप एक्चुअली में शेयर्स देना चाहते हो या यू जस्ट वांट टू लुक फेयर, या बेनिफिट पास ऑन करना चाहते हो। दूसरा क्वेश्चन आप उससे पूछते हो कि भाई ये जो है कल को एम्प्लॉय को शेयर्स एक्चुअली में वेस्ट होने के बाद मिल जाएंगे, तो आप क्या चाहते हो कि वो SHA कल को हो तो उसमें सिग्नेटरी बने, छोड़ के चला जाए तो उसको पकड़ना पड़े सारे शेयर होल्डर्स की तरह, या आप चाहते हो कि ट्रस्ट टाइप की कोई अथॉरिटी हो जो मिडिल मैन एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरह काम करे, पैसा तो जो आए वो बेनिफिट कैपिटल गेन्स हो या डिविडेंड हो एम्प्लॉय को चला जाए, मगर जो सिग्नेटरी है और जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है और वोटिंग पावर है वो अपने हाथ में रहे। ठीक है, सो बेसिस दैट एम्प्लॉयर से जब आपके क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाते हैं, आप क्या करते हो, क्वेश्चनेयर बनाते हो। क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चनेयर बनाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई क्या चाहते हो। उसके बाद देखना होता है कंपनी स्टार्टअप है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, किस तरह की कंपनी है, क्या वैल्यूएशन है, आप कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं सारे को ₹0 पे देना चाहते हो या कुछ को 0 पे देना चाहते हो, कुछ को आप एक सब करंट वैल्यू पे देना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो कि ESOP प्लान बनाते हो, पहले बेसिक डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में कंसिडर क्या करते हो, पहले कंसिडर करते हो कि किसको दोगे, उसके बाद आप बोर्ड अप्रूवल के प्रोसेस के बाद डालते हो कि कल को वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो क्या करोगे। अगर मान लो उस एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया और वो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई और उसकी वजह से छोड़ जा रहा है, तो उसके लिए प्रोविजन है कि इमीडिएट वेस्टिंग हो जाएगी, उसके शेयर की वैल्यू करना होगा, तो उसको पैसे कैसे दोगे। तो ये सारा मैकेनिज्म आप बिल्ड करते हो। आंसर्स आपको मैनेजमेंट देता है, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं उसको, बट क्वेश्चन पूछना हमारा काम है। तो हमारे पास जैसे मैं मान लो कंसल्टेंट हो, मेरे से कोई पूछता है ESOP बनाना है, तो पहले मैं उसको बताता हूँ भाई ESOP में ये प्रोज एंड कॉन है, ESOP बनाना चाहते हो SAR दोगे, किसको देना है, एम्प्लॉय को देना है, कंसल्टेंट को देना है तो SAR बनेगा, क्योंकि ESOP दे नहीं सकते कंसल्टेंट को। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अवार्ड एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें सारी प्रोविजन रखते हैं एम्प्लॉय के साथ कि भाई अगर तुम छोड़ के जाओगे तो हम क्या करेंगे, किस केस में हम फोरफिट कर लेंगे, किस केस में हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे, वो सारा हमारे को लिखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज है प्लानिंग में कि पहले समझना पड़ता है कि जिसको जो ESOP का डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको क्या चाहिए, उसके बाद कागज बनता है। ठीक है, तो ये मतलब रेडीमेड नहीं है, हमारा काम है कस्टमाइज वाला कि पहले हम समझते हैं, समझने के बाद हम प्लान बनाते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन आ गया, जो लॉ में प्रोसीजर है कि भाई कंपनसेशन कमेटी बनेगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूट करेंगे, HR से रिकमेंडेशन आती है किसको कितना देना है। बिकॉज आपको जो है, अगर आपने 5% का पूल बना लिया
तो आपके यहाँ 100 एम्प्लॉई है, तो आप किसको ईसॉप दे रहे हो, कितना दे रहे हो, नंबर ऑफ ईसॉप डिसाइड करना है, फिर वेस्टिंग शेड्यूल डिसाइड करना है कि भाई ये मैं 4 साल में वेस्ट हो जाए, हर साल 25-25% हो जाए, या कितनी कंपनियां कहती हैं कि पहले साल 10% होगा, दूसरे साल 10% होगा, बाद के साल में ज्यादा होगा, कितनी कंपनियां कहती है 7 साल का वेस्टिंग शेड्यूल है। फिर आप क्या करते हो, अगर कोई इन्वेस्टर आ गया वो कहता है सारा ईसॉप खत्म करो, तो आप एक्सिलरेटेड वेस्टिंग के राइट्स रखते हो। आप समझ रहे हो आदित्य? यस यस। क्लियर? कुछ और पूछना है आप? सर जो ईसॉप अभी हमने अपने ईसॉप का हमने जो पूल बनाया है, इट्स नॉट वेस्टेड, अभी हमने किसी एम्प्लॉय को दिया नहीं है, एंड बस पूल बना के छोड़ दिया फिलहाल। सो जो हम हाँ। फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे जो शेयर्स कैलकुलेट करते हैं, उसमें ये कैलकुलेट होगा या नहीं? देखो, फुली डाइल्यूटेड बेसिस क्या है कि ये ऐसा कुछ कंपनी लॉ में तो प्रोविजन है नहीं। आप तो एक्सेल पे नहीं। कंप्यूट कर रहे हो, इन्वेस्टर से डिस्कशन कर रहे हो, तो उस समय तो आपको कंप्यूटेशन में वो लेते हो। हाँ, अगर आप अगर यूएस में दे रहे हो या यूरोप में, तो वहां पे ईसॉप वाले शेयर रिजर्व हो जाते हैं, और आप बाउंड होके आपको वो शेयर देने पड़ेंगे, वो पूल अलग हो जाता है। इनफैक्ट उनके यहाँ फाइलिंग होती है, उसमें वो दिखाना पड़ता है कि हाँ ईसॉप पूल इतना है। यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है कि आप पूल बना लेते हो, और वो इंटरनल डिस्कशन के लिए आपके और इन्वेस्टर के बीच में कि भाई डाइल्यूशन का बेसिस ये होगा, इतना डाइल्यूट होगा, अगर ईसॉप ये इशू हो जाएंगे तो मेरा शेयर होल्डिंग इतना घट जाएगा, तुम्हारा घट के इतना हो जाएगा। राइट राइट। सो ईसॉप पूल विल नॉट बी पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, है ना सर? ईसॉप ESOP pool जो हमने क्रिएट किया है, that is only the pool is created, that's all, nothing done, so हवा that में will है। not form a part of paid up capital. हाँ, और जो बैलेंस शीट है ना, उसमें शेड्यूल 3 में आपको एक नोट डालना पड़ता है। शेड्यूल 3 में लिखा Yes. हुआ है कि आपको एक नोट डाल के दिखाना पड़ेगा, बट वो बैलेंस शीट का कैपिटल का हिस्सा नहीं होता है, ईसॉप नोट में आता है नीचे। Okay sir. शेड्यूल 3 का चेक करोगे ना, तो उसमें ईसॉप के लिए लिखा हुआ है कि नोट करके आएगा। Alright sir. जस्ट टू अच्छा ये चेक करना था कि बोर्ड रिपोर्ट में तो कुछ डिस्क्लोजर तो मेंशन करना होता है इस बोर्ड रिगार्ड रिपोर्ट में ईसॉप बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं, मतलब आई मीन करना पड़ेगा। कंपनी ने बोर्ड जैसे रिपोर्ट पूल में बना आपको सारी लिया है, डिटेल देनी है, अलॉट तो नहीं ईसॉप किया इज है, ऑब्लिगेशन। Uh, तो यू आर sir, सपोज टू डिस्क्लोज दिस ईसॉप इन बोर्ड रिपोर्ट। इनफैक्ट बोर्ड रिजोल्यूशन होता है, बोर्ड मीटिंग में है, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट की फाइलिंग में ईसॉप का जो है थोड़ा सा डिटेल हम डालते हैं। थैंक यू। सर एक क्वेरी है। बेसिकली जो शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट है, ये पहले नॉर्मली रूट क्या रहता है जो लॉ में लिखा हुआ है कि पहले एनआरसी के थ्रू गए, बोर्ड एनआरसी का अप्रूवल लिया, बोर्ड का अप्रूवल लेने के बाद शेयर होल्डर्स अप्रूवल ले लिया, बोर्ड की रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनआरसी बोर्ड एंड यही शेयर तरीका होल्डर्स है। अप्रूवल एंड बी क्रिएटिव करेक्ट। एनआरसी पॉलिसी, ईशॉप पॉलिसी, राइट सर? करेक्ट। तो इन केस ऑफ ईशॉप पॉलिसी जब कंपनी ने क्रिएट कर ली, तो भी शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है क्या सर, या उसका बेनिफिट है ईसॉप वाले शेयर होल्डर के लिए? ईशॉप? हाँ, जैसे देखो, कंपनी ने एक ईशॉप बीइंग ए लिस्टेड कंपनी, तो हमने एक ईशॉप पॉलिसी तो बना लिया है, राइट? उस पे शेयर एक होल्डर तो पहले बात अप्रूवल ले करते हैं लिया। प्राइवेट लिमिटेड की और लिस्टेड की। हाँ, आपने शेयर होल्डर अप्रूवल तो ले लिया, करेक्ट। अब शेयर अगर होल्डर, आपकी कंपनी मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें कोई इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट में एक चीज नॉर्मली लिखी होती है कि अगर कोई नया शेयर होल्डर ऐड होगा, सो उससे आप एक डीड ऑफ एडहेरेंस साइन कराओगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, लिस्टेड की नहीं। ठीक है। ओके ओके, सो आप जब ईसॉप एग्रीमेंट बनाते हो, एक तो ईसॉप का प्लान बनता है, एक अवार्ड एग्रीमेंट बनता है, या ईसॉप एग्रीमेंट बनता है, तो उसमें जी लिखा होता है कि भैया तुम्हारे को राइट्स हैं, एक्सरसाइज ऐसे करोगे, बट एक्सरसाइज करोगे तो साथ में तुमको एक्सरसाइज लेटर के साथ डीड ऑफ एडहेरेंस साइन करनी पड़ेगी, एंड यू विल डीम टू बी अ सिग्नेटरी टू द एसएचए, और वो कंप्लाई करना पड़ेगा। राइट, जी जी, ठीक है। अब आते हैं लिस्टेड कंपनी पे। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पे तो रेस्ट्रिक्शन लग ही नहीं सकता। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट दे रखे हैं आपने, कुछ समय के लिए उसको होल्ड कर रखा है कि भाई तुम ट्रांसफर नहीं जी जी, करोगे। ठीक है, करेक्ट। राइट सर, बट टेक्निकली आप देखो, लिस्टेड कंपनी के लिए जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी की बात करता है पब्लिक लिमिटेड में। ठीक है। राइट वो सर, ट्रांसफर कर देगा तो आप उससे कंपनसेशन वसूल सकते हो, बट शेयर ट्रांसफर वंस डन इज वैलिड। तो वो क्या करते हैं, डीमेट वाले में ही रेस्ट्रिक्शन लगवा देते हैं। ओके,
ठीक है, जब आप डीमेट शेयर कराते हो ना तो सर्टेन शेयर्स के अगेंस्ट आप इंस्ट्रक्शन दे देते हो जो आपका डिपॉजिटरी है कि भाई मेरे ये शेयर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स हैं। तो आरएसयू का जो कल्चर है ना रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स का, वो क्या करते हैं, बजाय शेयर के आरएसयू इशू कर देते हैं। अच्छा, ओके, राइट तो सर, आरएसयू 1 RSU इक्वल टू 1 शेयर, ठीक है। ओके, तो वो कहते हैं कि भाई इतने समय तक रेस्ट्रिक्शन है, उसके बाद वो नॉर्मल शेयर है। ओके, राइट सर, राइट सर। नॉर्मली जो लॉक इन पीरियड है, जैसे कि हम लास्ट स्लाइड्स देख रहे थे, उसमें लॉक इन पीरियड की बात हो रही थी शॉप के लिए, तो 1 ईयर का तो कंपलसरी लॉक इन पीरियड रहता ही रहता है, बेसिकली ग्रांट नहीं एंड कोई पहले 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 था, आप कोई मारामारी नहीं है, आप जो मर्जी रखो लॉक इन का, कंपनीज रखती हैं, बट ना भी रखो तो कोई बात नहीं है। ओके, 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 राइट सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और हेलो कुछ? सर, हेलो। यस, जो ई शॉप है वो पेड अप कैपिटल का हाँ जी पार्ट नहीं है त्यागी सर? साहब बोलिए। ये पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है सर ई शॉप? यार ईसॉप में आपने शेयर इशू नहीं किए, हवा में है, कैसे पेड ठीक अप है। कैपिटल में डालोगे उसको? अच्छा अच्छा, दूसरी चीज सर, इसकी कोई लिमिट भी है कि हम इतने ही क्रिएट कर सकते हैं, इतने इशू कर सकते हैं, या कितने भी कर सकते हैं? यार देखो, टेक्निकली तो हवा में है, जितने मर्जी इशू कर दो। ठीक है, करेक्ट, और आपने एक चीज बोली ना कि 10% से बट ज्यादा नहीं आपको कर सकते। आपकी मजबूरी ये है कि यू हैव टू आस्क टेक अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब राइट आपके सर। शेयर होल्डर जो हैं, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर, उसको बोलो कि मैं 200% ईसॉप किसी को इशू कर रहा हूँ, और 200% इस किसका तरह सर? वेस्टिंग हो जाएगी तो कंपनी का आपसे डबल शेयर होल्डर हो जाएगा और आप माइनॉरिटी हो जाओगे। वो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो क्या जी कहेगा कि फाड़ के फेंक दो स्कीम को। जी, तो राइट। रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एज्यूम किया गया है कि जिसका जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इतना पढ़ा लिखा है कि अपने इंटरेस्ट की रखवाली कर सकता है। और जो ठीक है, कंपनियां कंपनी सेक्रेटरी, राइट सर। कंसल्टेंट, लॉयर अफोर्ड कर सकती हैं, ठीक है, तो लॉयर वाला का काम क्या है? हमारा काम तो यही पहरेदारी करना है ना। हम्म। तो ये कंपनी के पास तो 450। हम हमारा हमारा लॉयर या कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है? जी, वी आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। राइट सर। हमने सुपारी ले ली, हम जाके ठोका है, सही गलत सोचना हमारा काम थोड़े है। तो वैसे ही है ना। राइट सर। दूसरी चीज सर, अगर किसी को ई शॉप से शेयर इश्यू कर दिया किसी एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय लेफ्ट कर जाता है और वो कोऑपरेट नहीं करता, तो कंपनी के पास उस केस में क्या मतलब पावर है कि उसके शेयर को फोरफिट करना, या कि भाई कैसे कर एक सकते? बार शेयर भाई एक बार शेयर किसी को आपने ओके, इशू कर दिया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर के फॉरफीचर का तो प्रोविजन है। आप बताओ कंपनीज एक्ट में कहीं प्रोविजन है कि आप शेयर इशू करने के बाद फॉरफिट कर लोगे? अच्छा, आई एम नॉट अवेयर सर। नहीं है भाई, एक बार शेयर दे दिया तो दे दिया। इसीलिए तो भाई लोग कंपनियां सॉफ्ट ट्रस्ट बना रही हैं, ये सारी चीजें मैकेनिज्म इशू कर रही हैं भाई। एज पर कंपनी एक्ट फोरफिट नहीं कर सकते, बिकॉज राइट? लिए हुए शेयर अगर वापस दिए हुए शेयर वापस लिए जा सकते तो क्या बात थी? आपको नहीं नहीं, पता है अपने देश में 84,000 करोड़ की वैल्यू का जी जी LIC और ये सब अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, PF ये सब। जी, राइट सर। IIP इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में इतना सारा जी, शेयर पड़ा हुआ है, जिन कंपनियों का वे कैंसिल करके अपनी कैपिटल नहीं बढ़ा लेंगे। ओके। नहीं आई पॉसिबल बिलीव। है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे किसी को 200 रुपए का 10 रुपए में मिल जाता है एम्प्लॉय को, आपने बोला वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके परक्यूजिट में डल के, और वो उसके पास टैक्सेशन की लाइबिलिटी आ गई सर, लेकिन अगर वो बाद में उसको वापस करता है और उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। हेलो। एक्सरसाइज करने के बाद वैल्यू डाउन हो जाती है, शेयर ले लिए, टैक्स दे दिया। जी। आपको तो हमारे देश का इनकम टैक्स कुछ वापस करता है क्या मिलने के बाद? तो टैक्सेशन का एक तरीके से टैक्सेशन का इम्पैक्ट आ गया उसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर। हाँ, अच्छा अच्छा, तो यार आप जब शेयर खरीदते हो तो शेयर के साथ रिस्क भी खरीदते हो। आप राइट कंपनी सर। के एम्प्लॉई हो, यू आर सपोज टू नो अबाउट द कंपनी। आपने कंपनी के शेयर्स ले लिए, अब शेयर की वैल्यू नीचे चली गई, राइट नथिंग सर। कैन इनकम टैक्स डू अबाउट इट। आपने एक कॉन्शियस डेलिबरेट डिसीजन एक पॉइंट पे लिया, उस पॉइंट पे टैक्स लग गया। अब जब जी, बेचोगे तो कैपिटल गेन से कैपिटल लॉस राइट। होगा, आपका लॉस आ गया तो कैपिटल लॉस हो गया, कहीं और कैपिटल गेन से तो एडजस्ट हो जाएगा। ओके सर। नहीं है तो भाई भारत की तरक्की में कुछ कंट्रीब्यूशन बनता है आपका। तो ये परचेजिंग पे भी, और अगर सेल पे है तो दोनों पर लगेगा फिर, तभी आप दोनों बोल पे रहे हो डबल लगेगा, टैक्स? एक पे परक्विजिट वाला लगेगा, दूसरे पे कैपिटल गेन्स लगेगा। दूसरे पे कैपिटल गेन लगेगा, राइट सर। ओके सर।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और जिस एम्प्लॉय को जो है शेयर्स मिल गए, जी वो शेयर अपने फैमिली मेंबर्स को भी ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता? अगर अगर उसके ईसॉप प्लान में प्रोविजन है तो कुछ कंपनियां ईसॉप प्लान में अलाउ करती हैं, कुछ नहीं अलाउ करती। अच्छा, ओके सर। मोबाइल से तो उस हिसाब से देखा जाएगा फिर। हाँ। I have a view here. जो त्यागी जी पूछ रहे थे कि कंपनी ने ईसॉप इशू कर दिया, अभी उसको एम्प्लॉय भाग गया, क्या करें? तो जब आप ईसॉप प्लान बनाते हैं मिस्टर त्यागी, तो आप ईसॉप राइट प्लान में टिपिकली 3 सेपरेट स्टेज होती हैं ऑन एनी ईसॉप प्लान। वन इज ग्रांट, सेकंड इज वेस्टिंग, थर्ड इज एक्सरसाइज। ओके तो ग्रांट इज जब आप इनिशियली किसी भी एम्प्लॉय को देते हैं तो बोलते हैं कि चलो तुमको 10,000 शेयर्स दिए कंपनी के आपने, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग शेड्यूल या वट एवर। तो वेस्टिंग 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल कुछ भी होती है, ठीक है डिपेंडिंग ऑन आप कैसे कर रहे हो। बट वेस्टिंग इटसेल्फ इज ओनली एन ऑप्शन। मतलब जब तक वेस्ट नहीं हुआ है तब तक तो वैसे भी आप जब मर्जी कैंसिल कर लो, एम्प्लॉय भाग गया तो उसका वेस्टिंग बाय मतलब आप ऑटोमेटिकली अनवेस्टेड शेयर्स जो है कैंसिल कर देते हो। जो वेस्टेड शेयर्स हैं वो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है टिल द टाइम जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में आपके यहाँ है, और वेस्टेड शेयर्स उसके पास पड़े हुए हैं। तो अगर उसने एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज करने में अगर आपने जो भी वेस्टिंग प्राइस रखी हुई है वो एम्प्लॉय ने पे कर दिया, तो आप उसको एक नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू करते हो। द मोमेंट यू इशू इक्विटी शेयर तो वो ईसॉप नहीं रहता, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्विटी शेयर हो जाता है। उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो शेयर होल्डर है। तो मतलब भाग गया तो कुछ नहीं कर वो सकते, उसके पास वेस्टिंग है। पीरियड के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होता। वेस्टिंग अच्छा अगर पीरियड कंप्लीट हो गई है फिर भी एम्प्लॉय को एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज में क्या होता है, नॉर्मली एक कुछ आप जब ईशॉप्स देते हो ना, तो यूजुअली जीरो जीरो प्राइस पे ईशॉप शायद ही कोई कंपनी देती है। नॉर्मली एक प्राइस होती है, कंपोनेंट होता है, और टैक्स का भी इम्पैक्ट होता है, जिसपे हम आई बिलीव अनिकेत ने डिटेल्ड उस पे बोला था, ओके राइट? सो वेस्टेड, अगर मैं मेरे पास ईसॉप मिला हुआ है, वेस्टेड है, मैं एम्प्लॉय हूँ आपकी कंपनी का, तो जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ, एक्सरसाइज का प्रोसेस है, मतलब टिपिकली एक फॉर्म फिल करके देना होता है कंपनी को। नॉर्मली कंपनी बना देती है फॉर्म कि भाई मेरे इतने मान लो 10,000 शेयर्स जो हैं वेस्ट हुए हुए हैं एंड आई वांट टू एक्सरसाइज इट, उसके लिए मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, चाहे उसके साथ चेक दूंगा या वटेवर दूंगा। एक्सरसाइज मींस कंसीडरेशन। कंसिडरेशन, यस। सो एक बार कंपनी ने उस वेस्टेड शेयर के अगेंस्ट इक्विटी अलॉट कर दी, इक्विटी अलॉट कर दिए, फिर तो वो नॉर्मल शेयर्स हैं, फिर तो उस पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी एक्ट के अंदर कि भाई एक बार अलॉट हुआ तो आप एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो उस पे भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अज्यूमिंग कि एम्प्लॉय जो है उसके पास वेस्टेड शेयर्स हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं किया है, अभी वो छोड़ के जाता है, तो मोस्टली ना आप कुछ कुछ ईसॉप प्लान्स में देखोगे वो मेंशन करके रखते हैं कि भाई एक्सरसाइज के लिए एम्प्लॉय को कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, नॉर्मली नोटिस पीरियड में नहीं होना चाहिए, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं विच आर वैलिड। सो उस केस में एम्प्लॉय को छोड़ के भागता है, सिर्फ वेस्टेड शेयर्स हैं विच हैज नॉट बीन एक्सरसाइज्ड, ओके तो वहां पे आप वेस्टिंग कैंसिल कर सकते हो, मतलब वो यू वांट अलाउ द एम्प्लॉय टू बेसिकली एक्सरसाइज। ओके तो जिसके पास ई शॉप है सर, ई शॉप में अगर किसी के पास कोई शेयर है तो उसको कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग एज ए नॉर्मल शेयर होल्डर उसका राइट तो है नहीं फिर कुछ भी? नहीं, सिर्फ ईसॉप है तो कोई राइट नहीं है, कोई वो सिर्फ ऑप्शन है। वो इक्विटी में कन्वर्ट ना हो जाए। हाँ, टिल द टाइम एक्सरसाइज नहीं हुआ है, और एक्सरसाइज होने के लिए मतलब शेयर अलॉटमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, कि बोर्ड अप्रूव करेगा कि भाई ये इतने लोगों का वेस्टेड था, एक्सरसाइज होना है, बोर्ड अप्रूव करेगा, आपके कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में उसका नाम जाएगा और उसके अगेंस्ट इक्विटी इशू होंगे, तब वो एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, तब वो नॉर्मल शेयर होल्डर हो जाता है। तो अगर मैं एज ए एम्प्लॉय बात करूं तो एज ए एम्प्लॉय के मेरे पास जो राइट होंगे वो कंसिडरेशन के बाद ही आएंगे? एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आएंगे, बिल्कुल। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद? जी बिल्कुल। इससे पहले क्योंकि मैंने कोई कंसिडरेशन कोई पेमेंट तो की नहीं, अगर वो शेयर कंपनी का बढ़ता है और मैं कहता हूँ जी मैं वापस कर रहा हूँ ये, और मेरे को इसका जो भी प्रॉफिट है वो कंपनी दे, तो उस केस में कंपनी लायबल है नहीं? नहीं, कंपनी पहली बात तो कंपनी कोई प्रॉफिट देने के लिए नॉर्मल ईसॉप में, मतलब सॉरी, देखो दो तीन चीजें हैं। आप अगर स्टॉक मतलब अगर जैसे अनिकेत ने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्विटी बेस्ड पेमेंट की बात करी थी ना आपने प्रेजेंटेशन में, तो उसमें ये था कि आप क्या दे रहे हो, आप रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट दे रहे हो,
या बहुत बार स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स देते हो, या नॉर्मल प्लेन ईसॉप दे रहे हो जिसमें इक्विटी ही मिल रही है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा नेचर है, मतलब अगर रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स हैं तो वहां पे टिपिकली क्या होता है कि शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं, जो वैल्यू एप्रिसिएशन हो रही है इक्विटी में, जितना आपको अलॉट हुआ यूनिट्स उसके हिसाब से आपको उसके प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन मिलता है। नॉर्मल ईसॉप में कोई प्रॉफिट पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर नॉर्मल इक्विटी है तो कोई प्रॉफिट पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने एक्सरसाइज किया हुआ है, आपको इक्विटी शेयर्स अलॉट हो गए हैं कंपनी में, तो अगर कंपनी डिविडेंड वगैरह दे रही है तो आपको मिलेगा, बोनस दे रही है वो मिलेगा, जो भी कंपनी दे रही है नॉर्मल शेयर होल्डर्स को आपको भी मिलेगा। वो एक्सरसाइज से पहले भी मिलेगा? नहीं, एक्सरसाइज के पहले क्या होता है कि नॉर्मली जब आप जैसे कंपनी में कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है ना, जैसे बोनस शेयर्स वगैरह इशू हुए, स्प्लिट वगैरह हुआ, तो वो कॉर्पोरेट एक्शन जो है ना वो फैक्टर कर लेता है कि ईसॉप कितने ग्रांट हैं, उसके हिसाब से कॉर्पोरेट एक्शन में उन चीजों को भी अकाउंट कर लिया जाता है। लेकिन वैलिडिटी तभी होगी, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी तभी है जब वो एक्सरसाइज हो। जब तक एक्सरसाइज नहीं है तब तक कोई राइट नहीं, तब तक वो। अच्छा, ओके सर। तो एम्प्लॉय के पास कोई तो वो तो फिर एक वैसी चीज, कोई राइट तो है ही नहीं उसके बाद आने के बाद, जैसे एज ए एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या लेबर एक्ट, कई सारी उसके पास राइट मिल जाते हैं उसको। नहीं, ये एम्प्लॉय डिस्प्यूट एक्ट में, लेबर एक्ट में इसका कोई लेने देने नहीं है, ये प्योर कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। एज इंसेंटिव हो गया, इंसेंटिव नहीं है, ये स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन है, अलग से कोई सेपरेट इंसेंटिव नहीं है। ओके। तो सर जाकिर साहब ये समझो, ये जो है ना कि आपको ऑप्शन मिल गए, आप चाहो तो लो चाहे तो ना लो, तो आप एक्सरसाइज कभी करते हो जब आपको अपना फायदा दिखता है। बट एक्सरसाइज कर दिया तो आपको शेयर मिल गए, शेयर मिल गए तो जो बाकी शेयर होल्डर के राइट्स हैं वही आपके राइट्स वो हैं। राइट मेरे एम्प्लॉय पास होने की वजह से कुछ भी एडिशनल नहीं है, और इसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर एक्ट, इस सबसे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं सर। ओके सर। अब मालिक हो गए ना शेयर होल्डर में, तो राइट सर। हाँ, जब शेयर आ गए और इक्विटी में कन्वर्ट हो गए फिर तो अब ओनर हो गए सर। हाँ, फिर अब तो जनरल मालिक को मीटिंग क्या हल्ला कर होता है सकते कि हो और कंपनी कुछ चल नहीं। रही है, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, किसी ने लोन दे दिया तो इंटरेस्ट मिलता है, मालिक को लास्ट में जो बचता है वही मिलता है, वो ज्यादा है या कम है। जी, ठीक है, तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क कैपिटल है। ओके सर। आप जब लेते हो, शेयर्स ले लिया आपने, उसके बाद शेयर की वैल्यू नीचे गई, तो अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ाने में आपका कंट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से आपको शेयर्स मिले हैं, तो गिराने में भी तो आपका कंट्रीब्यूशन है मेरे भाई। कंट्रीब्यूशन, राइट सर। जी, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? Thanks a lot for your very valuable contribution. डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही साहब Or तुम्हारी। more आपकी आवाज knowledge. Yes, please. हाँ, दिल्ली सरकार की तरह हो गई है, पता नहीं चल रहा जेल में है कि बाहर है। सर एक नहीं, क्वेश्चन नहीं। और पूछ लो। हाँ, पूछ लीजिए। सर एक छोटी सी क्वेरी ये है कि जो सर हम व्हाट इज द बेसिस ऑफ अलॉटिंग द ESOP टू द एम्प्लॉइज, मतलब हम किसको कितना ESOP ग्रांट करना चाहते हैं, सो उसके लिए एक पूरा वो शीट बनता होगा ना, अप्रेजल शीट टाइप का जैसे बनता है, तो ऐसा ही बनता है? देखो, कहने को क्या है कि ESOP ग्रांट का क्राइटेरिया होता है कि कौन सा बंदा किस पोजीशन पे है। जाहिर है जो सीनियर बंदा है उसका कंट्रीब्यूशन जाना माना जाएगा, कौन सा क्या रोल कर रहा है, कितना क्रिटिकल है, कितना पुराना एम्प्लॉय है, करेक्ट, कितने समय कंपनी के साथ रहा, ये सारे क्राइटेरिया लगाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया लगता है वो समझो, एक जाटो में बड़ी प्यारा मुहावरा चलता है कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। कहने का मतलब जो कंपनी का मालिक है, MD है, उसको जैसे अच्छा लगेगा वैसे ही बांटेगा वो। उसको लगता है कि आप बेकार हो मगर अच्छा काम करते हो तो आपको ज्यादा ESOP देगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। ठीक है, बट ऐसे सर कुछ तो वो होता होगा ना जो तो वही मैं कह रहा हूँ, वो ये है कि आप कितने पुराने हो, किस पोजीशन पे हो। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैनेजमेंट कैटेगरी कैडर है, ये मिडिल मैनेजमेंट है, ये सीनियर मैनेजमेंट है, ये CEO है, ये है, इस कैडर को इस हिसाब से वेटेज मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कौन कितने समय उस पर डिसाइड किया। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हायरिंग के समय में आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है कि तुम्हें इतने ESOP मिलेंगे, तो वो सारे फैक्टर को काउंट करने के बाद ESOP डिस्ट्रीब्यूट। इसके लिए कोई यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी, फाउंडर टू फाउंडर डिफर करती है।
मैं आपको कमलेश आप पूछ रहे थे तो मैं एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली जैसे बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है, ये सब ठीक है। तो इनमें नॉर्मली उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने बोला हुआ है कि एक सर्टेन लेवल के ऊपर जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको कुछ मिनिमम इक्विटी शेयर्स या ईसॉप्स देंगे वो, ठीक है। अब उसमें किसको कितना देना है उसके क्वांटम में चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा रोल कितना क्रिटिकल है किसी आदमी का। और लाइक अनिकेत वाज मेंशनिंग, मैनेजमेंट के कुछ प्रेफर्ड लोग हैं जो मैनेजमेंट को लगता है, वो कहने को तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है बट प्राइमरली वो बहुत सब्जेक्टिव होता है कि इनको ज़्यादा मिल सकता है। ये नॉर्मल लिस्टेड एंटिटीज में वो क्या करते हैं टू टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अपीयरेंस ऑफ फेवरेटिज्म और समथिंग, वो एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बना लेते हैं टिपिकली। और अगर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन खासकर लिस्टेड है तो उसके हिसाब से कि भाई ग्रेड वाइज, बहुत बार सीनियरिटी वाइज कि कौन कितने टाइम से कंपनी में है और ऑल्सो उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग वगैरह क्या है। लेकिन अगर वो आप सर छोटे, अप्रेजल शीट बनाते हैं ना, हाँ हाँ, IFC। अप्रेजल सीट से लिंक कर देते हैं कि मिनिमम इतना रेटिंग होएगा, ये परफॉर्मेंस मीट कर रहा होगा तभी देंगे। तो वो बहुत बार निगेटिव क्वालिफाइंग वो भी होते हैं कि ये चीजें होएगी तभी देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन इफ यू कम बैक टू स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट एंटिटीज हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, तो उसमें टिपिकली क्या होता है कि सिंस ईसॉप मोस्टली यूज करते हैं एज अ, अब स्टार्टअप बहुत बार क्या होता है कि अगर किसी बहुत स्किल्ड इंडिविजुअल को हायर करना चाहती है और स्टार्टअप के पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी या उसके एग्जिस्टिंग वर्थ को मैच कर सके, तो क्या बोलती है कि कैश प्लस इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन मॉडल जैसे डिसाइड किया हुआ है। तो वहां पे क्या होता है कि बोले ठीक है आपको पैसे तो हम बहुत नहीं दे पा रहे हैं बट विल गिव यू अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ ईसॉप, कि बहुत बार 1%, 2% भी मैंने देखा है लोगों को 5-5% तक एक एक इंडिविजुअल को दिया हुआ है स्टार्टअप के केस में, अगर अर्ली स्टेज स्टार्टअप है और क्रिटिकल रोल है, सीटीओ वगैरह हुए या इस टाइप के ये हुए रोल्स, तो वहां पे उनको देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे कंपनसेटरी ईसॉप है, ठीक है, जो आपकी जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कैश में सैलरी नहीं दे पा रहे हैं बहुत सारा, तो उसके अगेंस्ट आप कंपनसेशन दे रहे हैं इक्विटी में। कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी, ठीक है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन में बोला कि ठीक है चलो कंपनी ग्रो कर रही है तो सबको उसमें मतलब वो रेवरी बटेगी। अब किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट सबको मिलेगा उसके ग्रोथ में। तो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टेटस है, वो जो क्राइटेरिया टू ग्रांट ईसॉप वो बदल सकता है। तो मोस्टली ना इसके लिए लाइक अनिकेत वाज मेंशनिंग, मोस्टली वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी करेगा और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना मोटिवेशन होता है कि कैसे मतलब वो ईसॉप को कैसे ट्रीट कर रही है। ओके ओके सर। एक मिनट, किसी ने हेलो सर किया है, हाँ जी, सिर्फ हेलो सर का मैसेज आया है, पल्लव चोपड़ा टू यू, ओके। पल्लव, यू आर आस्किंग माय नंबर और यू आर आस्किंग अनिकेत's नंबर? Sir, your number. My number. You know Nityanand Singh? Yes, sir. Yes. He will share my Pallav, I number. will share. Okay. He has my number. Okay. Okay. Yeah. By the way, He is I Mr. work with Aniket, so we are part of the same firm. So that's He Okay. is Mr. He is Mr. Sasija. He is one of the eminent personality. Deal with cryptos. Okay. If you want to ever invest in the crypto, yes, you can contact him. Certainly, I will provide you. Okay. ठीक बोला ना शशि जी आपके लिए? ठीक है सर, और तो कोई क्वेश्चन नहीं, अब खत्म करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक हाँ यू। प्लीज। हेलो सर, एक छोटा सा क्वेरी था। बेसिकली क्या है कि बिफोर लिस्टिंग हमने एक ईशॉप पॉलिसी बनाया जिसको बोर्ड से अप्रूवल, बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद शेयर होल्डर्स अप्रूवल ले लिया, राइट। ठीक और है। ये शेयर होल्डर्स अप्रूवल ले लिया, उसके बाद में कंपनी लिस्टेड हुआ। लिस्टेड होने के बाद उसमें अपना सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स स्कीम अपना एप्लीकेबल हो जाता है। तो अपना रेगुलेशन 12 बोलता है कि रेटिफिकेशन होना चाहिए सब्सिक्वेंटली। तो हमने रेटिफाई करा लिया उसको शेयर होल्डर से, ठीक है। लेकिन जब ईशॉप पॉलिसी बनाया उस समय 62(1)(v जो अपना कंपनी लॉ है उसके अकॉर्डिंग ईशॉप जो अपना पॉलिसी था और जो नोटिस वगैरह था उसके अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया, क्योंकि तब तक कंपनी लिस्टेड नहीं था, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स उस पर एप्लीकेबल नहीं था।
Correct. अब रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि एट द टाइम, अब इस समय भी आपको वो रेगुलेशंस फॉलो करना था, मतलब नोटिस के लिए है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैं रेटिफाई करा रहा हूँ तो रेटिफाई तो केवल मतलब स्कीम तो पहले ही अप्रूव हो चुकी है, तो रेटिफिकेशन में तो सिंपल रेटिफाई होना चाहिए, अप्रूवल तो पहले ही हो चुकी है। या इस समय यार भी देखो, एक हाँ, रेगुलेशन है इसमें 6(2), रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2, तो वो कहते हैं कि उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेबी बेस्ड रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। हम्म। यार देखो, सबसे बड़ी चीज है कि जब पहली बात है कि जब आपने स्कीम बनाई थी तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाई थी। जी जी। ठीक है। जब सेबी लिस्ट हो गए हम्म तो टेक्निकली अब आपको सेबी भी कंप्लाई करना है। ठीक है। राइट। लॉ में क्या है, अनलेस कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो, आप जो चीजों को ऐसा इंटरप्रेट करते हो कि दोनों का रिस्पेक्ट रह जाए, हार्मोनिक इंटरप्रिटेशन। राइट सर। सो आप क्या करते हो कि सेबी और दोनों को लेकर जो है अपने ईसॉप प्लान और स्कीम को आपको मॉडिफाई करना होगा, ताकि सेबी वाला जो प्रोविजन है वो भी हो। ठीक है। वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। राइट। अनलिस्टेड में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लिस्टेड में तो आप कर नहीं सकते हो। हम्म सो क्या है कि कंपनी के पास ज्यादा पावर्स हैं, लिस्टेड वाले में तो कंपनी के पावर्स थोड़े कम हो जाते हैं, कर्टेल हो जाते हैं। राइट सर। ठीक है। तो आपको तो कंप्लाई दोनों करना पड़ेगा ना, तो आपको रेटिफाई जो है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये सब चेंज होगा आपका एज पर जो सेबी और कंपनीज एक्ट दोनों को आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। दोनों ही फिर। हाँ। ठीक है। राइट सर। ओके। हाँ, थैंक आप दो देवताओं की शरण में हो ना, दोनों को मत्था टेकना पड़ेगा भाई। यू। ठीक है। ठीक है और सर। थैंक यू सर। लॉ में बड़ा 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 क्लियर है कि अनलेस डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो, आप दोनों देवताओं को सलामी मार के चलो। राइट सर। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। कंक्लूड करें। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Yes, thank you. Thank you so much. Nikita, vote of thanks थैंक to यू वेरी मच सर। Thank you so much. It was very informative. Aditya ji. After a very long time, I see you. Nice to see you. Yeah. Thank you. It was really very informative. I was quite मैंने भी interested आदित्य को to बहुत दिन से join. देखा। हाँ, इनफैक्ट मैं भी वही बोलने वाला था, मैं देख रहा था आदित्य का फोटो, वो वीडियो बीच बीच में इसका डिस्कशन हो रहा था। भाई आदित्य, ये नंबर ले लो मेरा, कनेक्ट जरूर करना। डेफिनेटली मैं टच में रहूंगा, बिल्कुल फॉलो करता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। Hey, This is Nikita, also a way to associate. Nikita, am I audible? Yes, sir. Yes, please go ahead. I would like to thank CS Kumar Aniket for such invaluable content. Also, I would like to thank Dr. Nityanand Singh for giving this platform through Vidya Vijay Foundation. Thank you everyone for joining. Have a great day ahead. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Thank A you. lot to all of you participants, and thanks to Aniket. Thank you. थैंक यू अनिकेत सर। थैंक यू नित्यानंद जी। Thank you, sir. बाय सर। May I end meeting, sir? Yes.